Lecture number 1, subject reasoning. Chapter number 15, topic sitting arrangement. Okay. There are two types of sitting arrangement. First, close, and second, open. Clear? Close means जब हम किसी पर्सन को सर्कल में बिठाते हैं, राइट, जिसे बैठा दिया, वो अरेंजमेंट जिसमें जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, उसे क्लोज अरेंजमेंट बोलते हैं। ओपन मतलब रूम में बिठाते हैं या कॉलम में। क्लियर? ओके। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल में बिठाने की पोजीशन भी डिफरेंट टाइप की होती है। ओके, तो फर्स्ट है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सेंटर। जितने लोग बैठे सर्कल में, उनके सबके फेस की तरफ होनी चाहिए सेंटर की तरफ। जैसे ये पर्सन है, ओके, इन सबके फेस सेंटर की तरफ। क्लियर? सेकंड, when all are sitting around the circle facing opposite to center। जितने भी पर्सन बैठे हैं उनके सबके फेस अपोजिट होनी चाहिए सेंटर की। क्लियर? एंड थर्ड, when all are sitting around the circle mix arrangement, मतलब कुछ अंदर की तरफ सेंटर से फेस होगा, कुछ बाहर की तरफ, कुछ पर्सन के अंदर फेस होगा, कुछ पर्सन का बाहर की तरफ। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, A, P, R, X, S and Z are sitting in a room. Clear? S and Z are in the center. A and P are at the ends. Okay, R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? P के राइट में कौन है, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, A, P, R, X, S and Z are sitting in a row। इन्होंने बोला है कि रो में A, P, R, X और Z बैठे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? इन्होंने बता दिया हमें रो में, एक लाइन में रो में बिठाना है। ओके, S and Z are in the center। क्लियर? S और Z सेंटर में है। A and P are at the end of, A and P are at the ends। A और P एंड में बैठे हैं। ठीक है, R is sitting to the left of A। R कहां पर है, सिटिंग कर रहा है लेफ्ट, A के लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्लियर? Who is to the right of P? तो P के राइट में क्या होगा, P के राइट में X। ओके, बिकॉज A, P, R, X, H and Z are sitting in a row। ऑलरेडी इन्होंने बता दिया था कि S और Z सेंटर में है, A और P कॉर्नर में है। क्लियर? और A की राइट में R है। ठीक है, लेफ्ट साइड में R बैठा हुआ है, तो ओनली X बचता है। तो P की साइड में कौन होगा, इन्होंने पूछा who is to the right of P। तो P की राइट में क्या है, X है। तो X इज द राइट आंसर, बिकॉज
P की राइट हैंड, P की राइट साइड क्वेश्चन पूछा हु इज टू द राइट ऑफ P, तो P की राइट साइड कौन सा नंबर सिटिंग कर रहा है, X, अल्फाबेट कौन सा सिटिंग हो रहा है पर्सन यहाँ पर X, ओके। तो X ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? Question number 2. There are 8 houses in a line and each house is only one boy lives with the condition as given below. Okay. Option A. Jack is not the neighbor Simon. B. Harry is just next to the left of Larry. Option C. There is at least one to the left of Larry. Option D. Paul lives in one of the two houses in the middle. Option C. Milk lives in between Paul and Larry. Continue question number 2. If at least one lies to the right to the Robert and Harry is not between Todd and Larry, then which one of the following statement is not correct? क्या पूछा है आंसर में? Which one of the statement is not correct? इसमें से कौन सा statement correct नहीं है? तो first, Robert is not at the left, and second, Robert is between Simon and Todd, and C, Todd is in between Paul and Jack, right? So option C statement is not correct. Option D देखिए, there are 3 person to the right of Paul. तो क्वेश्चन में पूछा था if at least one lies to the right to the Robert and Harry is not between Todd and Larry, then which one of the following statement is not correct? So option C is not correct because Todd is not in between Paul and Jack. Okay, clear everyone? Question number 3. A, B, C, D and E are sitting on a bench. Okay. A is sitting next to B. C is sitting next to D. D is not sitting with E. Who is on the left end of the bench? क्वेश्चन में क्या पूछा है? Who is on the left end of the bench? C is on the second position. From the right, A is to the right of B and E. Clear? And C are sitting together. In which position A is sitting? क्वेश्चन पूछा in which position A is sitting. ठीक है, A की कौन सी पोजीशन है वहां पर सिटिंग करने की. ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे A, B कितने पर्सन है? A, B, C, D and E are sitting on a bench. एक बेंच पर इन्होंने 5 पर्सन को बिठा दिया. ओके. A is sitting next to B. जहां पर B के नेक्स्ट कौन बैठा है? A. क्लियर? C is sitting next to D. C कहां पे बैठा है? D के C क्या है? कौन है? D. क्लियर? ओके. D is not sitting with E. D E के साथ नहीं है. क्लियर? Who is on the left end of the bench? C is on the second position from the right A. तो इन्होंने पूछा है कि जो ये A है, राइट, who is on the left end of the bench? C is on the second position from the right A, right, from the right. A is to the right of B, जबकि A B का राइट है. ठीक है, क्लियर है?
बी राइट ऑफ बी एंड ई, मतलब बी एंड ई का राइट कौन है, ए, तो यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर ई हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पूछा इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए की पोजीशन क्या है ये पूछा गया। तो ए की पोजीशन कहां पर है, बी और सी के बीच में। तो आंसर इज बिटवीन बी एंड सी। ओके, क्वेश्चन में था इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, ए की पोजीशन हमें कंफर्म करनी थी। तो ए की पोजीशन क्या होगी, बी और सी के बीच में है ए, तो ये आंसर राइट है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting round the circle. Okay, circle बनाए, clear, and are facing the center. P, Q, R, S, T, U, V and W को सर्कल में सिटिंग किया गया, ठीक है। उनके फेस क्या बोला, एंड फेसिंग द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, और उनके फेस का है सेंटर की तरफ है। क्लियर, ओके। P is second to the right of T. P क्या है, ठीक है, P is second to the right of T, तो यहाँ पर P बनाएंगे। क्लियर, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है T, तो फर्स्ट T पोजीशन होगी, तो यहाँ T सेकंड पोजीशन पे। क्लियर, हु इज द नाइबर ऑफ R and V, ओके। S is not the neighbor of P, एस को पी का नाइबर नहीं बताया गया है, ठीक है। वी इज द नाइबर ऑफ यू, और वी को यू का नाइबर बताया गया है, तो वी को यू का नाइबर बताया। क्लियर, ओके। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू जो है एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, यहाँ पे क्यू आ गया। क्लियर, ओके। V इज द नाइबर ऑफ U, तो V U का नाइबर है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S एंड W के बीच में क्यों नहीं है। W इज नॉट बिटवीन V U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W U एंड S के बीच में नहीं है। बाकी कितना बचा, R, तो R यहाँ पर ओके आगे। क्लियर, आप क्वेश्चन में पूछा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइबर, कौन से ऐसे दो पर्सन है जो सर्कल में सिटिंग कर रहे हैं पर एक दूसरे के नाइबर नहीं है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर चेक करते हैं UV, तो UV चेक करो, UV एक दूसरे के नाइबर है, RP भी एक दूसरे के नाइबर है, QW भी एक दूसरे के नाइबर है, बट R और V एक दूसरे के नाइबर नहीं, क्योंकि उनके बीच में T है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आ गया।